Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, till the last lecture, we had completely discussed about the part one almost up to seven chapter we had discussed so far. So today we are going to discuss the chapter number eight, that is the electromagnetic waves. So friends, uh, electromagnetic waves, this chapter is actually a link between the electricity, magnetism, and the optics. So, friends, as name itself is suggesting, it is a electromagnetic waves. So, in this particular waves, electric field vectors, magnetic field vector, both are present. Actually, Maxwell was the person who theoretically invented, theoretically proved the existence of electromagnetic wave. For that, he actually used four concepts of electricity and magnetism. So, which four concepts are there? So, number one, Gauss theorem for electricity. So, the Gauss theorem for the electricity is the integration flux linked with the any closed surface is equals to the net charge enclosed by that closed surface to the permittivity of a vacuum. That is the first concept used by the Maxwell. Second, Gauss theorem for magnetism. So the flux linked with the any magnetic flux linked with any closed surface is always equals to zero. So that is the Gauss theorem for the magnetism. Third concept that he used is a Ampere circuital law. More precisely, I should say Maxwell Ampere law. The third concept used by the Maxwell, what he had done, actually in the Ampere circuital law, there was a something was missing. He named that missing quantity as a missing quantity as a displacement current. And the new form of Ampere circuital law is derived, that is called the Maxwell Ampere law. And the equation for the Maxwell Ampere law is a integration closed loop B dot dl is equals to mu naught conduction current plus displacement current. So that was the formula of the Maxwell Ampere law. And anybody know the formula of the displacement current? किसी को पता है displacement current का formula क्या है? So the displacement current can be given by epsilon naught d phi electrical by dt, that is dt of EA. So that was the formula of the displacement current. You can also write this displacement current in this way. So that can be also written as a epsilon naught A dE by dt. So that was a third concept that he used to
derive the existence of the electromagnetic waves. And the fourth one is the Faraday's law for electromagnetic induction. Electromagnetic induction. What is the Faraday's law? So Faraday's law was that EMF is equals to minus d phi by dt, phi magnetic by dt. But EMF can also be written as an integration closed loop E dot dl, where here the E, if you remember, here the E is an induced electric field. That is something different than the static electric field. Electric field can be produced by the two way, by the charge, number one, the source of the electric field is a charge, number one, and changing magnetic field. So changing magnetic field can also be produce the electric field. But induced electric field is a somehow different characteristic than the static field. Static field lines cannot form a closed loop, while the induced field lines can form a closed loop. So minus ddt of phi magnetic, in case of phi magnetic, I can also write integration b dot dl. So these are the four equations that Maxwell used to derive the existence of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. याद रखने के लिए इंटीग्रेशन येड़ा बेड़ा, इंटीग्रेशन येड़ा बेड़ा, इंटीग्रेशन अदल बदल. तो ये हो गया येड़ा बेड़ा, ये हो गया आपका अदल बदल, येड़ा बेड़ा अदल बदल. So by these four concepts, Maxwell had derived the existence of electromagnetic waves. After that, Hertz was the person who initially, the very first, Maxwell proved existence of electromagnetic wave theoretically. Hertz was the person practically. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस है ऐसा सबसे पहले थ्योरेटिकली मैक्सवेल ने प्रूव किया. उसके बाद हर्ट्ज ने प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए. ऐसा भी पता चला मैक्सवेल के इक्वेशन के द्वारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वैक्यूम में वो रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट होता है. बट अगर यहाँ पे म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर प्लेस करते हैं तो वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड मिलता है. दिस फैक्ट इंडिकेट्स दैट the solar radiation came from the radiation came from the sun, that is very low. At that time it was very well known that the solar radiation, the velocity of the solar radiation is 3 into 10⁸ meter per second, and Maxwell theoretically proved that the velocity of the electromagnetic waves is also 3 into 10⁸ meter per second. So that is indicating that the sun radiation, solar radiation is nothing but they are the electromagnetic wave. It is also proved. So this was the history of the electromagnetic waves. उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है. मैंने बहुत ही डीप में आपको एक बार, अगर आपको टाइम हो, ये आपके एग्जाम में नहीं है वैसे, बट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का थ्योरी सीखना है, समझना है, तो मैंने बहुत ही अच्छे से ये सिखाया है. तो आप एक बार वीडियो देखना, उसमें पूरा बहुत डिटेल में ये पूरा समझाया है. वैसे अभी तो ये आपके कंटेंट में नहीं है. तो ये मैक्सवेल के इक्वेशंस है सारे. एंड उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, तो उसके बारे में दिया हुआ है. आपके देख सकते हो यहाँ पे कि ओसिलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स. हियर यू कैन सी. एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है फ्रेंड्स? एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay.
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के ऑसिलेशंस y डायरेक्शन में है, देखो आप, नहीं सॉरी x डायरेक्शन में है, इसको x बोला हुआ है, यहाँ पे x बोला हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के ऑसिलेशन आप देख सकते हो x डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के जो ऑसिलेशन है ना, वो आप देख सकते हो कि y डायरेक्शन में, इसको y बोला गया है। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो है ना, वो y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है, प्रोपोगेशन कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, देखो आप, ये y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है, एंड प्रोपोगेशन कौन सा डायरेक्शन में है फ्रेंड्स, z डायरेक्शन में। तो मतलब ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, oscillation of the magnetic field vectors and the direction of the propagation, all these three things are perpendicular to each other. चलो, है कोई माइकल और किसी को पता है कि what is the direction of the propagation? direction of propagation का रूल कौन सा है? किसी को याद है? direction of the propagation can be given by the formula E cross B. So this is the direction of propagation. E cross B से वो मिलता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, तो बोले x डायरेक्शन में, मतलब i कैप। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कौन से, बोले j कैप। तो i क्रॉस j मतलब क्या आएगा, तो k कैप। तो आप देख सकते हो कि प्रोपोगेशन z डायरेक्शन में ही है। सो दिस इज व्हाट इज द रूल फॉर द प्रोपोगेशन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का फॉर्मूला दिया हुआ है। आफ्टर ऑल ये वेव्स है, तो वेव फॉर्मूला आपको पता होगा कि y इज इक्वल्स टू, याद करो, y इज इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, दैट वाज द वेव इक्वेशन। तो सिमिलरली यहाँ पे y के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड E0 साइन ओमेगा kx के बदले यहाँ पे उसका जो प्रोपोगेशन है वो z डायरेक्शन में है, पॉजिटिव z डायरेक्शन, तो kz माइनस ओमेगा टी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो ऑसिलेशन है वो x डायरेक्शन में, तो ex लिखना चाहिए। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो ऑसिलेशन है वो y डायरेक्शन में, तो by इज इक्वल्स टू b0 साइन kz माइनस ओमेगा टी। So this is the formula of electric and magnetic field. उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हमको पता है कि भाई E by B equals to C होता है, तो ये सब कुछ हमको पता है। Friends, there are some characteristic of the electromagnetic waves. हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो वेलोसिटी ऑफ द लाइट होता है। हमको ये भी पता है कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम is 1 upon mu naught epsilon naught, and in any medium it is given by 1 upon mu into epsilon. तो ये आप अगर v by c करोगे ना, तो mu तो क्या आएगा v by c, c by v करोगे ना अगर c by v, तो c by v का अगर रेशियो फाइंड करोगे ना फ्रेंड्स, तो क्या आएगा सोचो। So if you find the ratio of c and v, then you will get in the root c मतलब नीचे mu naught epsilon naught, ऊपर म्यू एप्सिलॉन। तो फ्रेंड्स ये आपका म्यू बाई म्यू जीरो मतलब म्यू आर हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन मतलब के हो जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर, एंड सी बाई वी इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन बहुत ही मायने रखता है, बिकॉज यहाँ पे 3 ब्रांच का कॉम्बिनेशन है। देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिक्स हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये ऑप्टिक्स का इक्वेशन हुआ। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब मैग्नेटिज्म हुआ, relative permittivity मतलब electricity. So this is the equation indicating the all the things. It is indicating the relation between the electricity, magnetism and optics. Apart from that, we had, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, but friends मैंने आपको प्रूव करके दिया था थ्योरी में कि इंटेंसिटी, देखो 2 चीज थी, एक तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया कैन बी गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये एनर्जी डेंसिटी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस का स्क्वायर, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ एप्सिलॉन नॉट ई जीरो एम्पलीट्यूड स्क्वायर आर एम एस मतलब ई जीरो बाई टू।
स्क्वायर करो तो 2 हो जाएगा. एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट बी आर एम एस स्क्वायर बाई म्यू जीरो, दैट इज रिटन एज अ बी जीरो स्क्वायर बाई 2 म्यू जीरो. तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ. And apart from that, we have also learnt about the intensity. Intensity is equals to energy per unit time per unit area. But energy per unit time is also known as a power. तो power upon area भी कह सकते हैं intensity को. And we had proved that the intensity is equals to energy density rho into C. मतलब epsilon naught ERMS square into C भी लिख सकते हो, या फिर आप BRMS square by mu naught into C भी लिख सकते हो. So these are the formula of the intensity. So friends, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया था. ये जो न्यूमेरिकल है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, इसके अंदर ये सारे फॉर्मूलाज का यूज किया हुआ है. उसके बाद अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है. याद रखने के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था, किसी को याद है कौन सा इक्वेशन? किसी को याद है कौन से इक्वेशन से आप पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को याद रख सकते हो? Lasmi-Bookshi. So this is the formula by which you can remember all the electromagnetic waves simultaneously. L का मतलब होता है long wave, S का मतलब होता है short wave. This long and short wave both are considered to be a radio wave. Communication में generally ये waves use होते हैं. M shows a microwave, I for infrared, V for visible region, U for ultraviolet, X for X-ray, and Y for gamma rays. When you move from long wave to the gamma waves, your frequency goes on increasing. So whenever there is a comparison between the frequency and wavelength, तो ये बहुत काम का इक्वेशन है. लॉन्ग वेव से गामा वेव्स में जब जाते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, वेवलेंथ डिक्रीज होता है, बट उसका जो स्पीड है, सो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. सो लक्ष्मी से वुक्शी तरफ जाओगे तो आपका याद रखना है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है. तो अगर कोई ऐसा पूछे कि अमॉन्ग्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज हैविंग द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो कोई बताएगा मुझे किसका है? विच वेव हैविंग द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी? गामा. गामा. एंड सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो लॉन्ग वेव का है. इज दैट क्लियर? वेवलेंथ का उससे उल्टा हो जाएगा, वेवलेंथ का उससे उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो ये उसके बाद देखो लक्ष्मी वुक्शी. सबसे पहले लॉन्ग एंड शॉर्ट वेव इज अ माइक्रोवेव, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेडियो वेव आ जाएगा. तो सबसे पहले रेडियो वेव के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है. फिर लाइन मतलब एक के बाद एक, लक्ष्मी वुक्शी, एल एंड एस मतलब रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, विजिबल, अल्ट्रावायोलेट, एक्सरे, गामा रेज. तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ब्रीफली डिस्कशन किया है. एक टेबल भी दिया हुआ है कि कहाँ से उसका मतलब ओरिजिन कहाँ से है और उसका डिटेक्शन किसके द्वारा होता है. तो इसमें से कुछ कुछ एमसीक्यू पूछ सकते हैं. तो ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है. जनरली एक आध एमसीक्यू इसमें से जनरली आता है. तो ये छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8. ये इसमें और कुछ नहीं था, ये सिंपल सा छोटा सा चैप्टर, आराम से आपको मार्क्स देगा ये चैप्टर. अच्छी बात ये है कि ये चैप्टर है ना, उसमें 4-5 पेज है और उसका जो वेटेज है ना वो 5 मार्क्स का वेटेज है. तो आराम से आप 5 मार्क्स आराम से मतलब बहुत ही इजीली आप उसमें ला सकते हैं, ऐसा चैप्टर है. ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था. फिर चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं. चैप्टर नंबर 8 का डिस्कशन यहाँ पे खत्म हो रहा है. चैप्टर नंबर 9 दैट इज ऑप्टिक्स.
रे ऑप्टिक्स। तो फ्रेंड्स बेसिकली चैप्टर नंबर 9 के अंदर तीन चार फिनोमेनन आपको सीखने हैं। चलो चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। तो इसके अंदर आपको तीन चार कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले आपको इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में समझना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। उसके बाद फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। उसके बाद फ्रेंड्स लेंस के बारे में है, रिफ्रैक्शन बाय द लेंस था फ्रेंड्स। उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। तो इतना कंटेंट आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में सोचते हैं फ्रेंड्स। चलो सो रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे? दैट इज अ मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पता किसी को? योर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी same, and that should be in the either side of the normal drawn at the point of incidence. Yes or no friends? तो सबसे पहले हम बात करेंगे। So friends, there are basically for the any of the mirror you can apply the formula, mirror formula. So anybody knows the mirror formula? चलो किसी को पता है mirror formula क्या है? Anybody knowing the mirror formula? So 1 upon u plus 1 upon v is equals to 1 upon f. Juhi, you had written a wrong answer. आपने जो फॉर्मूला लिखा that was for the lens. So ये मिरर फॉर्मूला है। यहाँ पे u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, f जो है वो फोकल लेंथ है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है। So magnification, once again it is wrong. मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो माइनस वी बाई यू है फॉर द मिरर। लेंस के लिए वो प्लस वी बाई यू है। एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ फफू, एफ अपॉन एफ माइनस यू, दैट इज ऑल्सो रिटन एज एफ माइनस वी अपॉन वी। So basically the definition of the magnification is a image height upon object height. So image height upon object height is a magnification, that is minus v by u, that is equals to f upon f minus u, that is equals to f minus v by fv. So these are the formula of the magnification.
अब हम पर्टिकुलरली प्लेन मिरर की बात करेंगे. सो फ्रेंड्स, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर होता है. हाँ, तीसरा फॉर्मूला मिरर के लिए अगर याद रखना है, अगर कोई तीसरा फॉर्मूला अगर मिरर के लिए अगर आपको याद रखना है, तो that is the relation between the focal length and the radius of the curvature, and that is found to be a r/2. yes or no friends? ठीक है. बट फ्रेंड्स, प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर कोई बताएगा टेंस टू क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, नंबर 1. नंबर 2, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन आएगा वो +1 आएगा. तो +1 का मतलब क्या हुआ? टाइप ऑफ इमेज कैसा आएगा? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? It is a virtual, erect and same size and having a same size that of object. तो ये प्लेन मिरर की बात हुई. चलो फ्रेंड्स, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज हैपनिंग टू द कॉनकेव मिरर? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कोई बताएगा मुझे? कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? नेगेटिव. या कॉनकेव मिरर के लिए ये दोनों का आपको एज ए पर द साइन कन्वेंशनल नेगेटिव लेना है. दूसरी बात, इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. मैग्निफिकेशन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव. दैट मीन्स, कोई बताएगा दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है. तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब इमेज कैसा होगा? बोलो, कोई बताएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. हाँ, तो पॉजिटिव अगर मैग्निफिकेशन है तो आपका इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. बट अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा. दोनों पॉसिबल है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव. बट एक चीज आपको याद रखना है कि वर्चुअल इमेज formed by concave mirror is always कैसा होगा? कोई बताएगा मुझे? is always कैसा होगा? स्मॉल कदाच. is always enlarged. तो कॉनकेव का जो रियल इमेज होता है ना वो डिमिनिश भी हो सकता है या एनलार्ज भी हो सकता है. कौन सा? रियल. बट जो वर्चुअल इमेज जो होता है ना कॉनकेव का, वो ऑलवेज एनलार्ज्ड होता है. तो वर्चुअल इमेज कॉनकेव के द्वारा जो होता है वो ऑलवेज एनलार्ज्ड होता है. दैट इज टू बी रिमेंबर.
एंड किसी को पता है कॉन्वेक्स मिरर का इमेज ऑलवेज कैसा होता है? फिक्स्ड ही होता है. फॉर द कॉन्वेक्स मिरर उसका एफ एंड आर जो है वो कैसा होता है? वो पॉजिटिव रहता है, उसका साइन कन्वेंशनल. एंड उसका जो मैग्निफिकेशन होता है इज ऑलवेज, एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा एक से कम होगा. मतलब क्या होगा इसका? मतलब कि इसका इमेज कैसा होगा? बोलो, क्या लिखना चाहिए मुझे? वर्चुअल Erect. erect and Small. Small. always small. Is that clear, friends? Apart from that, one more shortcut that is need to be remember. अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने वेलोसिटी है तो रिलेशन बिटवीन object velocity and image velocity. तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है. तो इमेज वेलोसिटी वी आई इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट, दैट इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, आर अपॉन 2u minus r whole square, and that can also be written as a f upon u minus f का स्क्वायर. तो ये शॉर्टकट आपको जेडब्ल्यू नीट में काम आएगा. So this is the relation between the image height and image velocity and object velocity. तो ये आपका हो गया. ये जो डिस्कशन था दैट इज रिगार्डिंग ऑन द रिफ्लेक्शन टॉपिक. तो रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग डिस्कशन ये खत्म हुआ. उसके अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो नो दैट अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, वो सारा चार्ट आपको थियोरी में पता है. बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझाया. अभी हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की. चलो, तो जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज अ स्नेल्स लॉ. भाई ईटा वन स्नेल्स तो क्या है भैया? ईटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. मतलब साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ईटा, दैट मीन्स थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ईटा. मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल डिक्रीज होगा. इसका क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल डिक्रीज होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रे रेयर टू डेंसर है तो एंगल डिक्रीज हुआ. मतलब क्या हुआ? बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल या बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल? बोलो. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है. एंड वाइस वर्सा, अगर ईटा डिक्रीज होता है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होना, मतलब क्या हुआ? रेयरर होना. तो एंगल बढ़ेगा. मतलब क्या हुआ कि इफ द रे इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो क्या होगा? द रे विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. इज इट ओके? और जनरल फॉर्मूला जो है स्नेल्स लॉ का वो क्या है? ईटा वन साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू ईटा टू साइन थीटा टू. इज इट ओके फ्रेंड्स? दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द स्नेल्स लॉ.
फिर इसके बाद हमने एक दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था, लेटरल शिफ्ट। सो आपको पता है कि भाई जब कोई क्यूबॉइड टाइप के ट्रांसपेरेंट स्लैब में से कोई रे जाता है तो उसका डायरेक्शन तो वही रहता है। मान लो कि ये कोई ट्रांसपेरेंट स्लैब है और यहां से कोई रे इंसिडेंट हो रहा है। ये इंसिडेंट हुआ, वैसे उसको जाना कहां पे था? वैसे उसको जाना ऐसे था, बट होगा क्या? when it enters from rarer to denser, the ray will be bent towards the normal. ये towards the normal bent होगा। एंड फिर वापस से क्या होगा? वापस से एक बार वो डेंसर से रेरर जा रहा है, तो अभी क्या होगा उसका? तो वापस से एक बार उसका रिफ्रैक्शन होगा एंड नाउ इट विल मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन एंड फाइनली इमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन है, वो दोनों डायरेक्शन एक ही है, पैरेलल है। देखो, बट क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में थोड़ा शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं भैया? ये जो शिफ्टिंग है उसी को बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो उसका लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। मान लो कि ये जो स्लैब है उसका थिकनेस टी है। मान लेते हैं कि ये स्लैब का थिकनेस टी है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा है, अंदर का मान लो कि ईटा 2 है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो थीटा 1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो थीटा 2 है। तो लेटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है, टी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन कोस थीटा 2। so that is valid for any of incident angle, any incident। but अगर थीटा स्मॉल है, if theta 1 is tends to 0, then this formula can also be written as a t theta 1 minus theta 2 by theta 1। you can also write t theta 1 minus eta 1 by eta 2। so these are the formulas for the lateral shift। okay, correspondent to the refraction, we also have a relation between the actual height and apparent height। relation between actual height or depth and apparent height or depth। so उसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना था कि HI अपॉन HO इज इक्वल टू ईटा अपॉन ईटा। इन डिनोमिनेटर ईटा ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन न्यूमरेटर ईटा ऑब्जर्वर जिसमें है उसका। चाहे डेंसर से रेरर देख रहे हो आप, चाहे ऑब्जर्वेशन डेंसर से हो रहा है या चाहे रेरर से हो रहा है, ये जो फॉर्मूला है वो सबके लिए वैलिड है कि HI अपॉन HO इज इक्वल टू ईटा अपॉन ईटा, वेर इन डिनोमिनेटर ईटा ऑब्जेक्ट, इन न्यूमरेटर ईटा ऑब्जर्वर। तो ये फॉर्मूला कहीं से भी चाहे ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो सबके लिए वैलिड है।
So that is the equation for the apparent height and actual height. उसके बाद जो टॉपिक है वो ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो आपको पता है कि इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. एक तो रे मस्ट go from ray must from ray must incident from, कोई बताएगा? From rarer to, सॉरी, कहां से कहां पे होना चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो रे कहां से कहां पे होना चाहिए? डेंसर टू रेयर होना चाहिए, पहली बात. एंड दूसरी बात, योर एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल को कभी कभी आईसी भी बोलते हैं, हम उसको सी बोलेंगे. और आपको ये भी पता है कि फॉर्मूला टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल, चलो क्रिटिकल एंगल को फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला याद है आपको? तो साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ईटा. बट आपको 1 अपॉन ईटा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ईटा रेरर अपॉन ईटा डेंसर. ये याद रखना है आपको. न्यूमरेटर में 1 तो अगर रेरर मीडियम एयर है तो है, ठीक है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ईटा रेरर अपॉन ईटा डेंसर. उसके बाद हमने थ्योरी डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड सरफेस. चलो किसी को याद है उसका फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन का? है किसी को याद? माइनस ईटा 1 अपॉन यू. उसका मैं आपको फटाफट याद करा देता हूं कि उसका कैसा फिगर था. मान लो कि यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो शायद आपको पता होगा कि एक रे डायरेक्टली यहां से जाएगा स्ट्रेट अवे, और दूसरा रे यहां से बेंट होगा और ऐसे जाएगा. तो ये जो है ना, ये आपका नॉर्मल है. रे जा रहा था ऐसे बट बेंट होगा. तो फ्रेंड्स ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ये सपोज कि ओ है, ये ऑब्जेक्ट को ए बोलेंगे, इमेज को ए डैश बोलेंगे. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो कि u है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ईटा 1 है, यहाँ पे ईटा 2 है, इमेज डिस्टेंस v है. तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने फॉर्मुलेशन डिराइव किया था, माइनस ईटा 1 अपॉन यू प्लस ईटा 2 अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन आर. सो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस. और इसी के बेस पे फिर लेंस के थ्योरीज हमने डिस्कस किए थे. तो फ्रेंड्स
आज मैंने है ना, देखो आपको बताऊं मैं, तो वी आर डिस्कसिंग फ्रेंड्स, ये रे ऑप्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो डिस्कस किए। उसके बाद रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक था वो भी डिस्कस किया। लेटरल शिफ्ट के बारे में डिस्कस किया, एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ के बारे में डिस्कस किया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के थोड़े एग्जांपल्स है, मिराज है, प्रिज्म के अंदर होता है, डायमंड स्पार्कल होता है, इसके वजह से ऑप्टिकल फाइबर भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, वो भी हमको पता है। और उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, तो उसके द्वारा रिफ्रैक्शन का थ्योरी, ये उसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया। अब लेंस के थ्योरी, लेंस के रिगार्डिंग थ्योरी एंड प्रिज्म के रिगार्डिंग थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आते हो तो देखो, लेंस एंड प्रिज्म इज एट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट रिवाइज हो गया है। तो अब लेंस के थ्योरी बाकी है, प्रिज्म के थ्योरी बाकी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो तो कंपलसरी आप डाउट लेके आना। नेक्स्ट टाइम में ये चैप्टर के, आज हमने 8th चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज किया, 9th चैप्टर का थोड़ा बहुत रिवीजन किया। 2 टॉपिक अभी बाकी है, लेंस एंड प्रिज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन दोनों का भी रिवीजन करेंगे और आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज गिव मी योर डाउट्स पूछते रहना। एग्जाम संडे है आपका, संडे का एग्जाम आपको कंपलसरी देना होता है। तो फ्रेंड्स कंपलसरी आपको ये एग्जाम देते रहना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? इज इट ओके? थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।